Good morning, 11th standard. Today we start with another one topic of equilibrium chapter, that is chapter number 7, and our lecture of today is about chemical equilibrium. Yesterday, beta, we discussed about the physical equilibrium. That first, what is equilibrium? Then, how many types of equilibrium are there? That there were two types of equilibrium. One is physical equilibrium, and another one is chemical equilibrium. Now, yesterday in the first one video, we also discussed about the different phase transformations takes place in physical equilibrium. ठीक है, जो कि क्या क्या होती हैं? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया, लिक्विड गैस इक्विलिब्रिया एंड अ solid gas equilibrium. Now beta, today in this one video we are going to talk about chemical equilibrium. Actually in our book we are going to study in detail about two types of equilibrium. One is chemical equilibrium and second one is ionic equilibrium. Now beta, अगर हम comparison की बात करते हैं तो chemical equilibrium is little bit easier as comparatively to the ionic equilibrium, as there is lesser calculations involved in chemical equilibria, whereas we can say that more calculations are required to solve the problems of ionic equilibria. But once we understand the chemical equilibria very clearly, so it will become very easier for you to solve the problems based on ionic equilibria. So let's start a chemical equilibria. First of all, जिस पर कि हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, but that we will discuss in the next one video, in which I am going to discuss also law of chemical equilibrium. Till that time, today we are going to study in detail about chemical equilibrium. So as the name suggests, और हम अगर बात करते हैं तो हमने अपनी previous video में भी ये डिस्कस किया था कि if a physical processes involved in equilibrium, then such a equilibrium is known as physical equilibrium. Whereas if the chemical processes, or we can say chemical reactions involved in equilibrium, then such a process or such equilibrium is known as chemical equilibrium. So till here I already discussed with you in previous video. If it is not clear or you have any doubt, so please just again watch the previous one lecture, and today we start from the chemical equilibrium. So बच्चे, इसके अंदर हमने बोला, जैसा कि मैंने बात करी अभी, कि chemical equilibrium is that equilibrium in which a chemical reactions involved. ठीक है, सो वो सारे प्रोसेसेस जिसमें कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं उन्हें हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. एंड जनरली अगेन we can consider that there are two types of equilibria, that is a static equilibrium and another one is dynamic equilibrium. But a static equilibrium is that equilibrium which takes place at rest. For example, आपने कोई एक बॉडी ली, एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और you start applying the force on this object from this direction, from this direction, as well as the same uh, Newton force or same force is applied from the reverse or opposite direction also. So can anybody tell me what will happen? Yes, think about, obviously the body will not move, the object will not move.
तो ये ऑब्जेक्ट यहीं का ही रहेगा, बट इस पर आप दोनों साइड से क्या कर रहे हो, यू अप्लाइड अ pressure on it. So such a type of equilibrium which do not move the object means the object remains at रेस्ट, ऑब्जेक्ट तो अपना रेस्ट पे ही रहा, लेकिन आप दोनों साइड से उस पे क्या कर रहे हो, आप इधर से भी फोर्स लगा रहे हो और इधर से भी फोर्स लगा रहे हो, देन सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज अ डायनामिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। Whereas when we are talking about the डायनामिक इक्विलिब्रियम, अब हम आ जाते हैं अगले इक्विलिब्रियम में। पहला इक्विलिब्रियम क्लियर हो गया है सबको, व्हाट्स दैट, कि आपने एक बॉडी ली एंड यू अप्लाइड अ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स फ्रॉम बोथ द साइड, देन व्हाट विल हैपन, काम तो हो रहा है बॉडी के ऊपर, बट द वर्क इज नॉट शोइंग बाय द ऑब्जेक्ट, या आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूवमेंट या कोई भी फोर्स या किसी भी तरह आपका किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट शो मोशन में नहीं आ रहा। सो सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसे हम कहते हैं एट रेस्ट इक्विलिब्रियम। Whereas when we are talking about the dynamic equilibrium which is generally takes place in chemical equilibrium, जितने भी equilibrium की हम यहाँ बात करेंगे now onward, वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा आपके, वो सारे के सारे डायनामिक इक्विलिब्रियम होंगे। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट दैट फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम it should be, or to exist chemical equilibrium it is necessary that the reaction should take place in a dynamic equilibrium. Okay, so in dynamic equilibrium the कैसा होगा, the reaction will be in motion, वो रेस्ट में नहीं होगी, कैसी होगी, आपकी मोशन में होगी। तो इस केस में क्या होगा, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक बिग बकेट ली या एक टब लिया, ठीक है, एक बकेट ली और उसमें इतना वाटर फिल कर दिया, फाइन बच्चे। अब इस बकेट में नीचे एक छोटा सा क्या है, होल है, यहाँ पर क्या है, होल है, और ये हमारा यहाँ से हमने टैप लगा, ये हमारा क्या है, इट इज टैप। ना व्हाट हैपेंस, टैप से, टैप आपने ऑन किया, टैप को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, वाटर स्टार्ट फिलिंग अप इन द बकेट, बट एज वेल एज द वाटर comes out, that comes out from the bucket also। जितना पानी यहाँ से अंदर जाता है, ध्यान से सुनना, जितना अमाउंट ऑफ वाटर टैप से जा रहा है उतना अमाउंट ऑफ वाटर ही बकेट से बाहर निकल रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस होल। ये क्या है यहाँ पे, होल, इससे क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ऑब्वियसली जितना वाटर यहाँ एंटर कर रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो गया, बाहर जा रहा है। इट मीन्स कि आप पानी डाल भी रहे हो, आप पानी बाहर भी निकल रहा है, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, द वाटर लेवल विल रिमेन सेम, पानी का लेवल जो है बकेट के अंदर दैट इज नॉट चेंजिंग। व्हाट डज इट मीन, दैट rate of या speed of forward reaction that is equals to, in this case, rate of backward reaction। यही हुआ, that rate of जितना पानी अंदर आ रहा था उतना ही पानी बाहर जा रहा है, and because of which the water of level, the level of water that will remain same। So such a case, अब क्या हुआ, मोशन में है, दोनों साइड आपकी रिएक्शंस हो रही हैं, बट इवन दो the water level that will remain equal, so that means such a reaction is an example of dynamic equilibrium। ये केस होता है आपका किसका,
डायनामिक इक्विलिब्रियम. सो इज इट क्लियर कि आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही थी, आपकी बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, बट ultimately the water level remains constant. So it means equilibrium is achieved. Equilibrium achieve हुआ, लेकिन कैसा equilibrium achieve हुआ? Dynamic. Most probably it must be clear to all of you. All right. Now beta we talk about the reactions are basically of two types. कौन सी होती है? One is the reversible reaction and another one is the irreversible reaction. Now for this you must have studied. Now we are talking about the reversible and irreversible. जैसे कि for example अगर हम बात करते हैं, there are the few reaction which takes place only in one direction. But before proceeding for that, please just note down all of this. What is static equilibrium, what is dynamic equilibrium और क्या क्या होते हैं, ये सारा नोट डाउन कर लीजिए. Then after that we are moving up to the reaction which are of two types. और हमने जैसे बात करी, हम पहले बात करते हैं किसकी? हम पहले बात करते हैं irreversible reactions की. तो क्योंकि irreversible जो equilibrium take place करता है, that will always take place in reversible reactions. वो हमेशा किस में take place करता है? Reversible reactions में take place करता है. That do not take place in irreversible reactions. So first of all I will explain to you irreversible reaction. Irreversible reaction, suppose हमने कहा कि कोई A plus B है and it converted into C plus D. ठीक है, एक रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है in which these are the reactants and these are the products. Irreversible reaction is that one in which a reactant huge amount या maximum amount of reactant is converted into product. बेटा ज्यादातर अमाउंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो गया? दैट विल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इररिवर्सिबल रिएक्शन. जो कि मतलब ये जो डायरेक्शन है जिसमें कि रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में है और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में है आपके, तो दिस वन रिएक्शन इज फॉरवर्ड रिएक्शन. ये रिएक्शन वापस नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल अ केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ strong acid, for example HCl, when react with the strong base NaOH, then it gives NaCl plus water. एंड ये जो है इसमें एक सॉल्ट बना है और वो भी कैसा? न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म. सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट easily NaCl when mixed with water or combined with water then it forms HCl and NaOH. तो वो रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में आपका एसिड और बेस को नहीं देगा. सो दैट मीन्स ये इनके इस पर डिपेंड कर रहा है, इसके नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बट इट इजीली डू नॉट टेक प्लेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बेटा उनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं एक्चुअली ऑल ऑफ दोज आर वेरी स्टेबल इन नेचर. तो वो यूजुअली अपने को ब्रेक करके और दोबारा से एसिड और बेस या दोबारा से रिएक्टेंट स्पीसीज को नहीं प्रोड्यूस करते हैं. लाइक इन दिस वन अगर हम एक सिंपल ले लो आप सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस में, ये तो पढ़ी नहीं है आपने 10th स्टैंडर्ड में भी ऑल्सो. सिल्वर नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट विद KCl कर लीजिए चलिए, या आप बेरियम क्लोराइड भी कर सकते थे यहाँ पे. सो इट विल फॉर्म
प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इसका प्रेसिपिटेशन व्हाइट पीपीटी दे देगा ये सिल्वर क्लोराइड का, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट इन एटम्स, दिस विल बी फॉर्म। तो इसमें जो व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl बनेगा, सो इट विल आल्सो, बिकॉज दिस इज अ स्टेबल वन, तो ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती, एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ irreversible रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। ऐसे ही अगर हम लेते हैं एग्जांपल कंबशन रिएक्शंस का, तो इसमें भी वही होता है, सिंपल, आपने कार्बन लिया इन सॉलिड वन फॉर्म, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराया, सो इट विल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म प्लस हीट एनर्जी लिबरेटेड। तो हमारी क्या आई, हीट एनर्जी। अब ये हीट एनर्जी तो आपकी कहाँ चलेगी, सराउंडिंग में चलेगी। CO2 is left, which easily not ready to decompose itself into carbon and oxygen. So such a reactions are known as a irreversible reaction in which equilibrium cannot be attained. Obviously बेटा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन तो हो रही है लेकिन बैकवर्ड हो ही नहीं रही, तो उसके अंदर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम डू नॉट टेक प्लेस इन सच टाइप ऑफ अ रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे। देन आफ्टर दैट वी विल मूव टू द, आप पॉज कीजिएगा वीडियो, जस्ट नोट डाउन ऑल द थिंग्स इन योर रजिस्टर एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, मैं तब तक आगे चल रही हूँ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, दैट इज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस ना। अगर अब हम बात करते हैं बेटा रिवर्सिबल रिएक्शंस की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए, now रिवर्सिबल रिएक्शंस और रिवर्सिबल प्रोसेसेस या रिवर्सिबल चेंजेस डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ केमिकल रिएक्शंस, दोज आर या विच आर reversible in nature, we are just talking about that, we are not talking about the reversible changes। प्लीज याद रखना, हम रिवर्सिबल चेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करते हैं, तो इसमें अगर सपोज आई हैव टेकन अ रिएक्टेंट A plus B which converted into C plus D। अच्छा, इसके अंदर जब भी रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करेंगे, तो always remember that you should keep it in your mind that you compare the reaction or change in concentration with respect to time। भाई हमें ये पता चलेगा ना कि जब आप टाइम 0 ले रहे हो, इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हो, तो सपोज इस एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन C है और इस B की भी C है, और इनिशियली T टाइम पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 है, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। टाइम जो है वो हमारा कितना है बच्चे, 0 टाइम है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, वेरी इजी, बट यस प्लीज जस्ट पे अटेंशन हियर। ठीक, तो T इज इक्वल टू 0 जब इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट हुई, देन इट इज what that is the concentration of A reactant is completely, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो ये लेस नहीं हुई है, here also this one after some time, अगर हम T कहते हैं, T टाइम पे ही है, तो इसकी रिएक्शन में भी पॉसिबल, ये C माइनस एक्स एक्स हो गई, और ये जो बना, ये C जो प्रोडक्ट था वो X मोल बन गया, B प्रोडक्ट ऑल्सो फॉर्म्ड X। Fine. After that, there must be one condition come in this one. ये moles में बेटा, DC is nothing but it is the concentration। X मोल जब C का बनेगा तो इसमें से उतना मोल कम हो जाएगा। भाई प्रोडक्ट बनता जाए, प्रोडक्ट आपका टाइम इंक्रीज होने में प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और इन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। That reaction is known as a forward reaction। उसे हम कहेंगे क्या रिएक्शन, that will be known as a forward reaction।
यही होगी। अभी सिमिलरली इसी तरीके से आफ्टर सम टाइम जब ये completely कन्वर्ट हो जाएगा, so may be possible there are the reactions which is started moving backward direction। वो क्या करती हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट कर देती हैं अपने प्रोडक्ट फॉर्म करना। सो एट दैट टाइम पीरियड सी प्लस डी विल एक्ट एज अ रिएक्टेंट और ए एंड बी क्या हो जाएंगे बेटा, प्रोडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई कि कुछ टाइम के बाद आपका ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगी और ए और बी फॉर्म होंगे के थ्रू सी प्लस डी के। उस टाइम पीरियड में इसकी कॉन्सेंट्रेशन सपोज सी है तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगी। आफ्टर सम टाइम this will be C minus X and this will be C and C। ये रिएक्शन हुई हमारी कौन सी, बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर बच्चे दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन टेक प्लेस करती है, that reaction or such reactions are known as reversible reactions। इन्हें हम क्या कहते हैं, reversible reactions। For example, very famous reaction, preparation of ammonia। ठीक है, so N2 plus H2 gives 2NH। Fine बच्चा, this is a what? This is an example of reversible reaction। SO2 plus O2 gives SO3। ठीक है, this is another example of a reversible reaction। ठीक, this is also hydrogen gas plus iodine gives hydrogen। बेटा ये रिवर्सिबल है, प्लीज इस सिंबल्स का ध्यान। दिस इज अ रिवर्सिबल, दिस वन फॉर फॉरवर्ड, दिस वन एरो फॉर बैकवर्ड, तो ये रिवर्सिबल एरो होती है। फाइन, सिमिलरली हियर आल्सो वी अप्लाइड इट दैट दिस गिव्स it is your again a reversible reaction। So beta this one is all about your we can say that reversible reactions examples and here तो बेटा हम बात कर रहे थे कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारा क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल्स में भी समझाया दैट फॉर एग्जांपल N2 plus 3H2 gives 2NH3 और H2 plus I2 gives 2HI और SO2 plus O2 gives SO3 and so on। ठीक है, so if we are talking about chemical equilibrium, so there are two conditions must be fulfilled। पहली that the dynamic equilibrium should be there। क्या होना चाहिए, एक तो dynamic equilibrium होना चाहिए and the another one is the reaction should be a reversible reaction। तो ये दोनों अगर हमारी conditions जो है fulfill हो जाती हैं then only the chemical equilibrium will be attained। तो हम क्या कहेंगे कि chemical equilibrium attain होगा। अब आ जाते हैं फर्स्ट, अगर सपोज मैंने कहा that this is a reversible reaction and it takes place in dynamic equilibrium। A plus B gives C plus D। For example हम बात कर रहे हैं N2 plus 3H2 gives 2NH3। ये रिएक्शन है। तो सपोज अगर इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हो आप कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम पे बच्चे, तो क्या होगा बेटा, these are the reactants initially, ये सबसे हाईएस्ट पे होंगे। ठीक है, और ये धीरे 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 क्या करेंगे हमारा that goes on। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगी जब जीरो टाइम है तो N2 plus H2 रिएक्टेंट की
कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, सो इट गोज ऑन डिक्रीजिंग लाइक दिस, ठीक है, और टाइम के साथ वो डिक्रीज होता चला जाएगा ऐसे। whereas at that time period ये रिएक्टेंट है, ओके, ये रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो इनिशियली फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की। इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट माने NH3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, जीरो होगी, एंड ग्रेजुअली विद इंक्रीज इन टाइम इट गोज ऑन लाइक दिस, और धीरे धीरे ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी टाइम के साथ। ये है तुम्हारी बेटा NH3 का, और ये है N2 प्लस N2 प्लस H2 का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक टाइम धीरे धीरे पहले ये बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम गोज ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ता जाएगा और ये कम होती चली जाएगी, ठीक है। बट देयर मस्ट बी वन टाइम कम्स अप आफ्टर सर्टेन टाइम, जब दोनों ही जो होंगे, माने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसके बाद ये कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी, बिल्कुल ऐसी चली जाएगी, राइट। तो मीन्स ये कांस्टेंट हो गई, इट इज नॉट गोइंग चेंज, दैट मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction is equals to rate of backward reaction, और यहाँ पे आपका क्या अटेन हो जाएगा, here we will attain, यहाँ हमारा क्या अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, कैसे बना, सिंपल वन, हमारा धीरे धीरे concentration of reactant goes on decreasing with increase in time, whereas concentration of product that goes on increasing with increase in time. After certain time there must be one state or condition will come when both concentration will becomes equal. There will equal का मतलब ये नहीं constant हो जाएगी, चेंज नहीं हो रही, ये नहीं कह रही हूँ, कांस्टेंट हो जाएगी, बिल्कुल बराबर नहीं हुआ, कांस्टेंट हो गया, जिसका मतलब कि जो स्पीड थी फॉरवर्ड की वो इक्वल हो गई स्पीड ऑफ बैकवर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर केमिकल इक्विलिब्रियम, कि वो होता क्या है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। टुमारो or my next video we will discuss about more characteristics of chemical equilibrium. Till that time, thank you to all of you, and please repeat all the topics whatever we have studied today. Make your notes in your chemistry registers, and read through your NCERT book also. Thank you.